सबसे पहले जो भी वेटनरियंस ऑल ओवर दी इंडिया ज्वाइन हुए हैं, उनके अलावा बहुत सारे पैरावेट्स या एआई टेक्नीशियंस भी ज्वाइन हुए हैं और बहुत सारे फार्मर्स ने भी इंक्वायरी किया था, रिक्वेस्ट दिया था कि इस वेबिनार सीरीज को आप हिंदी में करेंगे तो हम लोग भी ज्वाइन होके इसमें से नॉलेज शेयर कर पाएंगे, नॉलेज अंडरस्टैंड करेंगे। सो मॉडर्न डेयरी फार्मिंग में ब्रीडिंग इज ए की apart from apart from feeding and management. So productivity is a important parameter जिसके बेसिस पे इस बिजनेस को इवेल्युएट किया जाता है। सो मॉडर्न डेयरी फार्मिंग के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यही टॉपिक महावेट, महाराष्ट्र स्टेट गैजेटेड वेटनरी ऑफिसर्स एसोसिएशन और जियो गौ समृद्धि आप सभी व्यूअर्स के लिए लेके आई है। और ये टॉपिक आप आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं डॉक्टर परीक्षित देशमुख, जिनके पास 17 साल का रिच एक्सपीरियंस है वेटनरी साइंस का, जो एबीएस इंडिया के मार्केटिंग हेड है इंडियन बिजनेस के लिए। सो जियो गौ समृद्धि और महावेट की तरफ से हम लोग उनके भी पहले ही आभार मानते हैं कि आप सभी भाइयों के लिए, डॉक्टर्स के लिए उन्होंने अपना मूल्यवान समय निकाला। मैं हमारी जियो गौ समृद्धि टीम और कंपनी का भी आभारी हूँ कि उन्होंने हमें आप सभी डॉक्टर्स के लिए एंड फार्मर्स के लिए इस तरह के एक्सटेंशन एक्टिविटी प्रोग्राम्स, नॉलेज शेयरिंग प्रोग्राम्स करने के लिए प्लेटफॉर्म अवेलेबल करा के दी है। सो आई रिक्वेस्ट डॉक्टर परीक्षित टू टेक चार्ज फॉर दिस वेबिनार। धन्यवाद। डॉक्टर परीक्षित प्लीज। Yeah, thank you, Dr. Santosh, and thank you very much. I understand that it is late evening for everyone, and the topic which I am giving is in genetics, because when I was a student in a veterinary college, and from the first year itself, the genetics was one of the boring subjects. It was very difficult to the digest, and being a pathologist today, I am trying to deliver something on genetics. आपने एक रिक्वेस्ट भी की है कि जो हमारा आज का सेमिनार है ये अगर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में अगर हम कर सकते हैं तो आई ट्राई टू डू इट ऑन बोथ द लैंग्वेज, उसको एक कॉम्बिनेशन में रखेंगे। क्योंकि ये साइंटिफिक सेमिनार है तो देर आर various places where I need to specifically use English so that I am comfortable explaining and I can explain the topic in a very well manner. So I am thankful to the Mahavet and the Geo team for organizing this such a wonderful series of webinars. And today I got a chance to present this topic. So today's topic is fundamentals of modern and commercial animal breeding. So when we say a commercial animal breeding, our today's focus will be towards the dairy, because there are a lot of animal breeding activities are happening, like from laboratory animals to maybe a canine, feline, there are equine breeding activities, dairy, there are porcine, and even in a wine sector also, a lot of breeding activities happening. But considering my expertise and the available information, I'll be specifically keeping my focus onto the dairy only, and I'll be bringing some new insight how the commercial breeding activities are happening into the commercial large dairy farms. So to start my presentation, I just want to give this one small quote. This quote, one of my professor, Dr. Dakshinkar sir, used to tell us during our BVSC classes, and he used to say, beyond the potency of gene, one cannot produce anything. So I have one small example to explain why he was saying these things, that beyond the potency of gene, one cannot produce anything. So that means if you want to produce something more than the potency of that particular animal, we need to use a genetics. That's the best way or best tool available with us. So I welcome all of you in today's seminar, and as you can see, I have posted a photo of Holstein. So in my subsequent slide, you will see majority of discussions towards the Holstein. I'll also tell you why I have selected this Holstein and why I'm not talking about the local breed and all those things. All those things we will discuss in upcoming presentation. So before I start, I just want to introduce myself so that
we are clear who we are with each other, and you are aware that who is today's speaker. So my name is Dr. Parikshit Deshmukh. You can see my photo here also, as well as I have switched on my camera, so you can watch me live as well. Currently, I am holding a position of Marketing and Technical Services Head at Genus Breeding India Private Limited. It's very commonly known as ABS India in India, as well as now in South Asia. About my education, I have done my BVSc and AH from the Nagpur Veterinary College way back in 1998. I joined Nagpur Veterinary College. I can see from the name some of my juniors and the college friends are there on to this thing. So many of them, they know me since the college days. So I'm happy to see them here. I have done my master's in veterinary pathology from PJIVS Akola. And then I have completed MBA in marketing from the Symbiosis International University, Pune. About my experience, so currently I'm working with Genus Breeding India Private Limited. In fact, this week only I'm completing my 3 years with the Genus Breeding India Private Limited. Initially, I joined as for a business development manager, and now I'm looking after the marketing and technical services. My past experience, like I have earlier worked with Thermo Fisher Scientific. This is one of the scientific company you must have seen, right from pipettes to centrifuge to many instrument. In that company, I worked for 4 years. I was managing their animal health portfolio and many other portfolio which was related to the human biotechnology. Previous to that, I worked with the Dr. Reddy's laboratory. That's around 10 years, from 2007 to 2017. I worked there. I was scientist there and working into the good laboratory practices and drug discovery and toxicology team. And my first job was in a Brilliant Biopharma, which is a veterinary vaccine company, where I worked on to the FMD vaccine and the rabies vaccine. So you can see I'm carrying kind of a diversified experience, right from the drug discovery to the vaccine industry and some biotechnology. And currently I am giving the presentation on a genetics. So please take it from me. There may be a lot of geneticians. So I will try to do my level best to explain the today's topic. I just want to give a disclaimer that, today's presentation is basically my own idea. It's just a scientific information I'm sharing with all of you. I don't have any intention or any intention to promote my company or my company's product. It is just to share the knowledge and information with you. Today's entire presentation is kindly, I have compiled it, but the main source of this thing is one of my company's teammate. His name is Mohit. His father is also veterinarian. So he has compiled collected all this information. He is our, we call as one of our key person who is maintaining all the data of our company. So all the data he has compiled, and I am just presenting that information for all of you here. So that's a small disclaimer before we start. तो सबसे मेरा पहला क्वेश्चन है, मैंने एक टैगलाइन बताई थी कि बियॉन्ड द पोटेंसी ऑफ जीन वन कैन नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग, कि जो जेनेटिक्स है उसका जो हमारा एक एनिमल में पोटेंशियल होता है उससे ज़्यादा कोई कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो उसका एक एग्जांपल है, आप एक फोटो में देख सकते हैं, गौलव गाय है, और ये गौलव गाय आपको विदर्भ रीजन में मिलेगी, जिसका एक 750 किलोग्राम से 1000 किलोग्राम तक एक लैक्टेशन यील्ड होता है। अभी मेरे पास अगर ये गौलव गाय है और मैं इसको वर्ल्ड का सबसे बेस्ट फीड अगर मैं फीड करता हूं, क्या मैं इस गौलव गाय को 1000 से 5000 लीटर तक लेके जा सकता हूं? या फिर मैं सबसे बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस में करूंगा, सबसे बेस्ट वेटरनरी ट्रीटमेंट या सबसे बेस्ट कंडीशंस अगर मैं दूंगा, तो क्या मैं इस गाय को 1000 लीटर उसका जो पोटेंशियल है उससे उठा के 5000 पोटेंशियल तक लेके जा सकता हूं? आई एम श्योर आप सभी का इसमें जवाब रहेगा कि नहीं, ये गाय को हम फीडिंग, मैनेजमेंट या बाकी किसी भी इंटरवेंशन से इस गाय को हम आगे नहीं बढ़ा सकते। इसमें एक ही ऑप्शन है, वो है जेनेटिक्स का, कि हम जेनेटिक्स और सिलेक्शन और ब्रीडिंग के माध्यम से इसको आगे लेके जा सकते हैं। तो यही है इंपॉर्टेंस ब्रीडिंग का, कि अगर आपको किसी ब्रीड में अच्छी वृद्धि करनी है किसी भी चीज़ में, आज हम दूध के बारे में बात करेंगे या बाकी पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे, तो हमें जेनेटिक्स की ही मदद लेनी पड़ेगी। डेफिनेटली अगर एक गाय है जिसका पोटेंशियल 1000 लीटर केजी का है, लेकिन अगर वो करंटली 500 केजी दूध दे रही है, तो उसको हम बढ़ा के 1000 तक ले जा सकते हैं बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस से और बेस्ट फीडिंग प्रैक्टिस से, जिससे उसका जो ऑप्टिमम पोटेंशियल है उसे हम अचीव कर सकते हैं। ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है? ऑफ लेट मैं बहुत सारे व्हाट्सएप और फेसबुक के ग्रुप में हूं, और शायद कुछ किसान यहाँ पे मराठी नहीं जानते होंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ मराठी स्क्रीनशॉट लाए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 14 दिन की कालवट है या फिर हिफर है, ये कौन सी सीमेन की हो सकती है?
सो फार्मर ये सवाल पूछ रहा है। दूसरा सवाल है कि ये फोटो डाला है हीफर का और वो पूछ रहा है कि भाई ये कौन सी सीमेंट की हो सकती है, इसको रखना है या क्या करना है, इसका फार्मर को समझ में नहीं आ रहा है। और ये तीसरा है, फार्मर पूछ रहा है कि ये कौन सी ब्रीड हो सकती है। या ऐसा क्यों हो रहा है कि फार्मर के यहाँ पे छोटे छोटे बछड़िया है और फार्मर खुद नहीं जानता है ये कौन सी ब्रीड है, वो कंफ्यूज है। इसका रीजन ये है कि हमारे यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस अच्छी नहीं है। जब हम ब्रीडिंग करते हैं, जब हमारे यहाँ पे एआई होती है, हम इसको रिकॉर्ड नहीं करके रखते हैं, या फिर जो सीमेंट स्ट्रॉ हम यूज होती है उसको फेंक देते हैं, उसको हम कहीं रिकॉर्ड करके या फिर कहीं प्रिजर्व करके नहीं रखते, जिससे हमें यह पता चलेगा कि इस गाय में अगर हमने इंसेमिनेट किया था तो वो कौन से सीमेंट से इंसेमिनेट हुआ था। इसमें से बहुत सारे किसान ये होते हैं कि जिन्होंने प्रेग्नेंट गाय घर में लाई है, बहुत ज्यादा पैसे देके लाई है, उसके बाद में उनको घर में बछड़ी मिली है और उसको उनको पता नहीं है कि ये कौन से ब्रीड की है या फिर कौन से बुल से हुई है। फिर से वही आता है कि अगर हम 1.5 लाख 2 लाख की अगर गाय ले सकते हैं, उसके लिए पैसा दे सकते हैं, तो क्या हम ये छोटी सी चीज की डिमांड नहीं कर सकते कि इस गाय में कौन सा सीमेंट लगा है, और जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे घर में आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है वो कितनी अच्छी है और उससे क्या जेनेटिक्स हमारे यहाँ पे प्रोपोगेट होने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी को ध्यान में रखते हुए आज का टॉपिक मैंने डिजाइन किया है कि इसमें जो जेनेटिक्स का इंपॉर्टेंस कैसा है और लोगों ने इस चीज के ऊपर क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। एक आप सभी के लिए क्वेश्चन है, ये एक गाय है बेचने के लिए। ये एक डेयरी फार्मर है पंजाब का, इसे अपनी ये गाय बेचनी है, जो कि पहले लैक्टेशन में इसने 11,000 लीटर दूध दिया है। करीबन एक 38 टू 40 लीटर पर डे उतना हो सकता है 305 दिन का। ये अभी सेकंड लैक्टेशन में है, 5th मंथ में है अभी, और अभी 50 लीटर दूध दे रही है। और डेयरी फार्मर कहता है कि उसे इसे बेचना है और उसके पास में कोई ज़्यादा इसके बारे में डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। 1,80,000 रुपये वो लेना चाहता है, इसका वो क्लेम कर रहा है। आपका इसमें डिसीजन क्या रहेगा, क्या इसे लेना चाहिए या इसे नहीं लेना चाहिए? आप मनी मन में सोच के रखिए। कुछ लोगों का इसमें सवाल हो सकता है, जवाब हो सकता है कि हाँ लेना चाहिए, गाय तो बहुत अच्छी लग रही है, एकदम परफेक्ट होल्स्टीन लग रही है। कुछ लोगों का नहीं हो सकता है। ये सेम स्लाइड मैं सबसे आखिरी में आपको फिर से दिखाऊंगा और उस वक्त आपको चेक करना है कि क्या आपका अभी का जवाब और सबसे आखिरी के जवाब में कोई अंतर आया है या नहीं है। वही आज मेरा प्रयास रहेगा कि जब हम एक फोटो देख के या कुछ ऊपर ऊपर से ही किसी गाय का चयन करते हैं और बाद में ये सभी चीज़ों को साइंटिफिकली जब हम समझ लेते हैं, उसके बाद में हमारे सोच में क्या फर्क पड़ता है ये हम देखेंगे। आज फार्मर क्या करता है, आज फार्मर अगर उसके यहाँ पे उसके गाय को अगर उसे इंसेमिनेट करना है तो सबसे पहले देखता है कि बुल का फोटो देखता है कि बुल का फोटो कैसा है, क्या ये पूरे काले रंग का है। अगर ये तो होल्स्टीन की बात हम कर रहे हैं, आज का फोकस मैंने जैसे बताया कि होल्स्टीन में ही रहेगा। और क्या ये पूरे सफेद कलर का है या कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट और ब्लैक है, ये देखता है। दूसरा क्या देखता है फार्मर, दूसरा फार्मर ये देखता है कि क्या इसका कोट कलर कैसा है, कि कोट कलर में एक तो है बुल फोटो, दूसरा है कोट कलर, कि क्या कोट कलर में पूरा व्हाइट है या ब्लैक कलर है। तीसरा देखता है डैम्स यील्ड। डैम्स यील्ड मतलब इस बुल के मदर का मिल्क यील्ड कितना है, ये हमारा किसान देखता है। और तीसरा देखता है, चौथा देखता है वो फैट परसेंट कैसा है, पेडिग्री में ये चीज देखता है। अब ये क्यों देखता है, क्योंकि भारत में अगर किसान को एक तो दूध की मात्रा और दूध में रहने वाला फैट, इसी के बेसिस पे किसान को उसके दूध का रेट मिलता है। तो किसान तो वही देखता है जो उसे फायदा मिलने वाला है। किसान को पता है अगर ज्यादा फैट मिला तो ज्यादा फायदा है, ज्यादा दूध मिला तो ज्यादा फायदा है। और बहुत सारी चीजें ये करते वक्त हमारा किसान भूल जाता है कि इस बाकी बहुत सारी चीजें जिससे उसे फायदा हो सकता है। और एक आपके लिए पजल है, आपके यहाँ पे एक गाय है जो सेकंड लैक्टेशन में है, जो 10 लीटर दूध देती है और एक उसने 180 दिन में 10 लीटर के एवरेज से दूध दिया है। बाद में उसे मस्टाइटिस का इशू हुआ था। अभी फार्मर को जो है वो इंसेमिनेट करना है इस गाय को फिर से। और ये नीचे वाला जो बुल आप लेफ्ट साइड में देख रहे हो, इस बुल का फार्मर ने चयन किया है जिसका डैम शील्ड है करीबन 24,952 किलोग्राम एक लैक्टेशन का और 4.0 है उसका फैट परसेंटेज। इसमें आपका क्या विचार रहेगा, क्या आपने ये सीमेन आपके गाय में लगाना है? ओके, सो ये भी आप सोच के रखिए कि अगर आपको ये दो इंफॉर्मेशन मिलती है कि एक है कि आपके पास में
बुल का फोटो है और ये एक जानकारी है, तो आपने क्या करना चाहिए। हो सकता है आप में से कई लोगों ने सोचा होगा कि बहुत अच्छा दूध है, 24,952, तो ये बहुत अच्छा दूध है, इससे हम आने वाले संतान पीढ़ी में अच्छा ये कर सकते हैं। उसका हम कुछ एग्जांपल्स आने वाले स्लाइड्स में देखते हैं। तो एक एक डिफरेंट सिनारियो जो होता है वो यहाँ पे हम देखते हैं। तो क्या होता है कि जब हम सिलेक्शन करते हैं डैम्स ईल्ड के बेसिस पे, कि किसी भी बुल की जो माता होती है उसका जब हम दूध देखते हैं, तो क्या होता है, ऐसा समझिए कि मेरे घर में एक 10 लीटर की गाय है, होल्स्टीन गाय है, जो 10 लीटर देती है, और मैंने जो बुल सिलेक्ट किया है वो 30 लीटर वाला है। पोटेंशियल क्या है, उसकी मदर का पोटेंशियल है 30 लीटर। तो मुझे कितना दूध जो है आने वाली जो ये हिफर है उसमें मुझे कितना दूध मिलेगा। बहुत सारे लोगों का इसमें कैलकुलेशन ये रहता है कि अगर ये 10 लीटर यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ से आएगा 5 लीटर, और यहां से बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि यहां पे आएगा मुझे 15 लीटर, और ये दोनों का मिला के मुझे आएगा 20 लीटर। यही आंसर मुझे हर जगह मिला है। लेकिन टू योर सरप्राइज, आने वाले पीढ़ी में आपको 8 लीटर तक भी दूध मिल सकता है। ऐसा क्यों हो रहा है, यही पे इससे पहले वाली जो स्लाइड थी उसी से मैं कनेक्ट करता हूं। ये जो 30 लीटर दूध है ये इस बुल का पोटेंशियल नहीं है, ये इसके मदर का पोटेंशियल है। जब ये मदर से जीन ट्रांसफर हुए हैं मिल्क के, आपको पता ही नहीं है कि इसमें कितने आए हैं, ये क्वेश्चन मार्क है, किसी को नहीं पता है। और इसे हम अज्यूम करते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि यहां से 50% आया होगा। साथ ही में ये बुल से जब यहां नीचे में उसकी डॉटर में जीन जाएगा या जेनेटिक्स जाएगा, तो हम ये अज्यूम करते हैं यहां से भी 50% जाएगा। बहुत सारे लोग ये 30 लीटर इस बुल का ही मानना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसमें एक फैक्टर होता है, उसे कहते हैं रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का जेनेटिक्स में मीनिंग होता है, एकदम सिंपल भाषा में अगर मैं कहूं तो क्या गारंटी होती है, या फिर उसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि इतना जीन आगे वाले जनरेशन में ही जाएगा, और स्पेशली दूध का ही जाएगा, फैट का ही जाएगा, उसकी क्या गारंटी है। बाकी बहुत सारे जेनेटिक्स होता है, हाइट होता है, वेट होता है, स्किन कलर होता है, कोट कलर होता है, बहुत सारे टेक्सचर, स्ट्रक्चर, वो सब हम चीजें आगे देखेंगे कि जेनेटिक्स में कितने अलग अलग ये होते हैं, उसमें से क्या गारंटी है कि दूध की ही इस हिसाब से जाएगा। ये नहीं हो रहा है। इसी वजह से अगर हम देखें तो हमारे दूध में जितनी वृद्धि होनी थी उतनी नहीं हुई है। क्रॉस ब्रीडिंग की वजह से हमने बहुत अच्छा किया है। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं कि पेरेंट्स एवरेज में क्या होता है। पेरेंट्स एवरेज क्या होता है कि जहां पे हम डैम सील करते हैं वहां पे दो पेरेंट्स का एवरेज किया जाता है, एक तो मदर का और फादर के मदर का, ऐसे दोनों का एवरेज हम लेते हैं। यहां पर भी अगर पोटेंशियल 30 लीटर्स का ही है तो यहां पे कितना हो सकता है, फिर से कोई सोचेगा कि बहुत ज्यादा हो सकता है। यहां पर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो रिलायबिलिटी होती है वो 30 to 35% की होती है, और ऐसे केस में जहां पे मेरी गाय 10 लीटर दूध दे रही है, वो आगे वाली आने वाली जो पीढ़ी है वो 10.3 लीटर की देगी। और यहीं पे जो हमारा किसान होता है वो नाराज हो जाता है, और वो ब्रीडिंग से दूर भागता है या डेयरी फार्मिंग से दूर भागता है, और कुछ दिनों के बाद वो कहता है कि मुझे डेयरी फार्मिंग जो है ये प्रॉफिटेबल नहीं हो रही है। इसमें सोल्यूशन क्या है, नई टेक्नोलॉजी जिसे हम कहते हैं जिनोमिक। जिनोमिक वैल्यूज के बेसिस पे हमें करना है। उसका एक एग्जांपल देखते हैं। अगर आपके पास में एक काऊ है, वो है 10 लीटर की, उसमें आपने बुल सिलेक्ट किया है वो है 30 लीटर वाला। सेम आप देख सकते हैं तीनों एग्जांपल्स में मैंने सेम पोटेंशियल का बुल लिया है, लेकिन हर एक का पैरामीटर अलग है। यहां पे डैम सील्ड, यहां पे मैंने पेरेंट्स एवरेज, और यहां पे मैंने जिनोमिक वैल्यूज के बेसिस पे किया है। थर्ड एग्जांपल में क्या होता है कि क्योंकि ये बुल का टेस्टिंग हुआ है, यहां पे देखा गया है कि इस बुल में जो जीन है, जो दूध से रिलेटेड जीन है, उसका क्या परसेंटेज है, और उसका दूसरी पीढ़ी में, नेक्स्ट जनरेशन में जाने की क्या संभावना है, वो यहां पे कैलकुलेट की गई है, जो कि 77% है। और ऐसे केस में आपको दिखेगा कि जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें करीबन एक 60% तक ग्रोथ आपको दूध में यहां पे मिलेगी। बहुत सारे लोगों की इसमें सवाल हो सकते हैं, वी कैन हैव अ फर्दर क्वेश्चंस जब हम आगे में मिलेंगे। तो ये जो एक फर्क होता है, ये जिनोमिक बुल से आपको हर एक फार्मर को यहाँ पे मिल सकता है। उसका एक और एग्जाम्पल देखेंगे। ये तो एक हो गया सिर्फ दूध का एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल होता है कि होल्स्टीन गाय में बहुत सारे जो फार्मर्स होते हैं इंडिया के, वो जब गाय का चयन करते हैं तो वो देखते हैं कि गाय का अडर कितना बड़ा है। ये वो अज्यूम करते हैं कि जितना बड़ा अडर उतना ज्यादा दूध मिलेगा, लेकिन जेनेटिक्स ये कहता है कि ये जो हॉग जॉइंट होता है, ये हॉग जॉइंट के नीचे आपका अडर नहीं जाना चाहिए।
अगर ऐसा जाता है तो ये गाय गलत है, जेनेटिक्स इस गाय का उतना सही नहीं है। सबसे बढ़िया गाय कौन सी? ये हॉक जॉइंट को अगर एक आप लाइन खींचोगे, इसके ऊपर अगर अडर होता है तो ये सबसे बेस्ट गाय होती है। एकदम छोटा भी नहीं होना चाहिए, एकदम बड़ा भी नहीं होना चाहिए। तो इसके क्या नुकसान होते हैं किसानों को? सबसे पहले तो काऊ को अनकंफर्ट होती है, वो बहुत बड़ा होने की वजह से गाय जो होती है वो ठीक से चल नहीं सकती है। बहुत बार ये चांसेस होता है कि अडर आपका इंजर्ड हो जाए, और अडर इंजुरी की वजह से आपको मास्टाइटिस के बहुत ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो अडर बड़ा होने से दूध ज्यादा मिलता है, ये तो एक संभावना वो सोचते हैं, लेकिन उसके जगह उनको बहुत सारे नुकसान भी होना शुरू हो जाते हैं। अभी इसमें सोल्यूशन क्या है? इस गाय के लिए कोई भी सोल्यूशन नहीं है। फार्मर क्या कर सकता है? आने वाली पीढ़ी में इसको करेक्ट कर सकता है। क्या सोल्यूशन होता है उसमें? इसमें सबसे अच्छा सोल्यूशन होता है कि अगर आपके यहां पे ऐसी गाय है, इस गाय के लिए आप ऐसे बुल का सीमेन सिलेक्ट करें जिसमें अडर रिलेटेड पैरामीटर बहुत अच्छे हैं, जिसको अडर विड्थ, अडर कन्फर्मेशन और अडर डेप्थ, ये जो पैरामीटर है ये पॉजिटिव में है। अगर आप ऐसा बुल सिलेक्ट करते हैं आपके लिए, तो आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट उससे मिल सकता है। क्या होगा? आने वाली पीढ़ी में आपको अच्छा अडर आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से जो है आप जेनेटिक्स का फायदा उठा सकते हैं। बहुत सारे किसान या वेटरनरियंस को सबसे बड़ी दिक्कत परेशानी ये आती है कि इस डेटा को पढ़ना कैसे और इस डेटा को समझना कैसे। तो जो मॉडर्न ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस है, इसमें आज यही चीज हम सीखने वाले हैं। आगे आने वाले कुछ स्लाइड्स में मैं आपको उस चीज को एक्सप्लेन करूंगा। फिर एक और एग्जांपल देखते हैं लेग एंगल्स का। तो बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं उसमें जो लेग एंगल्स होते हैं वो अलग अलग तरह के लेग एंगल्स होते हैं। इसके वजह से आपको दिखेगा कि एनिमल में बहुत सारी परेशानी आती है। एनिमल को बैठने में, उठने में तकलीफ होती है, चलने में तकलीफ होती है। उसकी वजह से वो एक तो बैठे ही रहेंगे तो उठेंगे नहीं, अगर उठ जाते हैं तो वो बैठेंगे नहीं, क्योंकि उनको उठने में और बैठने में तकलीफ होती है। साथ ही में लेग प्रॉब्लम होने की वजह से, पेन की वजह से मिल्क प्रोडक्शन में भी बहुत सारी कमी आती है। इस तरह की जब आपको पुअर लेग, फिट एंड लेग स्कोर होते हैं, फिर से आप ऐसा बुल का सिलेक्शन कर सकते हैं जिसमें बहुत अच्छा फिट एंड लेग का स्कोर हो, और आगे वाले पीढ़ी में आपको एक अच्छी गाय आप तैयार कर सकते हैं। तो ये तो कुछ एग्जांपल्स हुए जो मैंने जस्ट शुरुआती इसमें आपको बताया है कि जेनेटिक्स का फायदा आप इस तरह से कर सकते हैं। तो आप सभी को ये एक होल्स्टीन का एक फोटो आपको पता है कि जिसमें अलग अलग उसके पार्ट्स दिए गए हैं कि हुप है, नी जॉइंट है, मजल, पोल, ये तो हमारा एक एनाटॉमिकल पार्ट है। लेकिन जब जेनेटिक्स आता है तो जेनेटिक्स में इसे हम कहते हैं ट्रेट्स। एनिमल के अलग अलग ट्रेट्स होते हैं, और ये ट्रेट्स जो होते हैं इसी के ऊपर एनिमल का जेनेटिक्स डिपेंड करता है, और इसी ट्रेट्स को आप आपके प्रोडक्शन से कोरिलेट कर सकते हैं, और इससे एक अच्छा जानवर या अच्छी गाय आप आपके फार्म में तैयार कर सकते हैं। या फिर अगर आप वेटरनरियन हैं तो आप आपके फार्मर्स को बता सकते हैं कि अगर आपको एक अच्छी ब्रीडिंग करके अच्छी गाय, अच्छे नस्ल की गाय तैयार करनी है तो आपको किस तरह से करना है। ये सभी जो यहाँ पे वर्ड्स है, एंगुलरिटी है, स्टेचर है, रम्प एंगल, रम्प विड्थ, अडर हाइट, सस्पेंशरी लिगामेंट, टीट लेंथ, फ्रंट टीट प्लेसमेंट, ये सभी चीजें आने वाले कुछ स्लाइड्स में हम अभी देखने वाले हैं।